अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एडवोकेसी फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। एक मीटर आया हुआ है मटिया ब्रिज बरतल्ला रेल लाइन का। लड़की का नाम सोनी है, उम्र 21 साल है। उनका हस्बैंड के साथ जमीन का विवाद के कारण उनका आज मर्डर हो गया। ये मैटर पूरी उनकी बहन बताएगी क्या क्या मैटर हुआ और कब से इनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और क्या क्या इन लोगों का डिमांड था, आप बताइए। আমার নাম সাহিনারা খাতুন। আমি সোনিয়া খাতুনের বোন, যাকে মার্ডার করে দিয়েছে। ওরা আমার বোনের শাশুড়ি, ওর হাজবেন্ড, ওর ননদ নন্দাই, ওর ননদের দুটো ছেলে সবাই মিলে খুব টর্চার করতো, সব রকম টর্চার করতো, খাওয়া দাওয়া থেকে ঘোরা বেড়ানো থেকে সব রকম। ওদের এখন একটা জমি লিজে দিয়েছে, সে টাকা পেয়েছে 5 লাখ টাকা ওর শাশুড়ির নামে সেটেল করে দিয়েছে। আর ওর একটা ননদ 1 লাখ টাকা নিয়েছে, ওর একটা ভাসুর, বড় ভাসুর 1 লাখ টাকা নিয়েছে। ও জিজ্ঞেস করেছে শুধু যে বাকি টাকাগুলো কি হলো। ও জিজ্ঞেস করেছে বলে ওকে সবাই মিলে মারধর করেছে। আজকে জুম্মার দিন ছিল, আশেপাশের লোকেরা সবাই নামাজ পড়তে গিয়েছিল মসজিদে, তখন ওরা আমার বোনকে মেরে দিয়েছে। ওর ননদ নন্দাই, ওর হাজবেন্ড, ওর শাশুড়ি সবাই মিলে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে পাকায়। তারপরে ওরা নাকি ইউনিফর্ম নিয়ে গিয়েছিল, ওখানে দেখিনি, বলেছে যে মারা গেছে, আমরা দেখবো না, নিয়ে যাও। এসে বাড়িতে শুইয়ে রেখে আমাদের খবর দিয়েছে। আমরা যখন গিয়ে দেখলাম তখন ওর মুখ সারা শরীর নীল হয়ে পড়েছে। দেখে মনে হলো যে ওরা 12টার দিকে মেরে দিয়েছে। আমাদের খবর দিল 3:30 4টের দিকে। तो आप लोग को मतलब ऐसा, पहले आप लोग को ऐसा लगा कुछ कि आपकी बहन को मतलब वो लोग मार देगा या ऐसा कुछ, मतलब आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? হ্যাঁ, ও কিন্তু আগে কিছু কথা বলতো না, এখন ও বাবার বাড়ি এসে থাকতো না, ওকে থাকতে দিত না, একদিনও থাকতে দিত না। এবারে ও এসে নিজে থেকে যে আমি থাকবো, আমাকে খুব বিরক্তি করছে সবাই মিলে। অন্য নন্দার শাশুড়ি আর হাজবেন্ড সবাই মারধর করছে খুব। ওকে 1 বছর আগে থেকে নাকি অতিরিক্ত মারা ধরা করছে, ও বলছিল না, এই এখন এসে বলে গিয়েছে। ওরা যেরকম ভাবে মেরেছে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে, ওদের যারা যারা করেছে সবার ফাঁসি চাই। ওর দুটো ননদ নন্দাই, ওর স্বামী, ওর শাশুড়ি, ওর ভাসুর আর बोलिए बोलिए बोलिए। लालटू। ननद ननद का नाम लालटू, उसका हस्बैंड का नाम कबीर। ওদের নাম লালটু। ওরা ডাক্তারপাড়া, ভিটাপুরি ডাক্তারপাড়া, ওদের যেখানে বাড়ি সেই পাড়াটার নাম পুরুতপাড়া। মার্ডার। আমার বোন কোনো অসুখ হলে বাচ্চা পেটে এসেছিল, তো ওইটি যেখানে বলবি সেখানে নিয়ে যেতে হবে। ওরা হাজবেন্ডেরও কোনো কথা চলতো না। আর ওর হাজবেন্ড ওর বোনের ওই মার কথা শুনে আমার বোনকে খুব মারতো, এত মারতো, সাদা নিয়ে মুখের এগুলো সব নীল হয়ে যেত। ও বরফ দিয়ে সাদা হতো, আমাদের বুঝতে দেবে না বলে। তারপর ঠিক হয়ে গেলে তারপরে বাবার বাড়ি আসতো। আজ আমার বোনকে ওরা মেরেই ফেলে দিয়েছে। আমাদের খবর দিতে যে তোমার বোন অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছে, জলদি এসো। আমরা গিয়ে দেখছি লাশ শোয়ানো। ওরা যারা যারা মেরেছে সবার ফাঁসি চাই, যেমন আমার বোনকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওই রকমই চাই আমাদের। আমার বাবা মা দুজনেই অসুস্থ, সব রকম শরীর খারাপ জড়িয়ে গিয়েছে, ওই জন্য আমার বোন কিছু শোনাতো না, যাতে আমার বাবা মার ক্ষতি হয়ে যাবে যদি আমাকে একদিন ওরা মেরেই ফেলে দেবে। আর সত্যি আজকে তারা মেরেই ফেলে দিয়েছে। মেরে আমাদের খবর দিয়েছে যে তোমার বোন, ওরা খবর দিন, ওদের পাশের লোক একজন খবর দিয়েছে যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তোমরা জলদি এসো। আমরা গিয়ে দেখছি ওর লাশ। आप कौन हुए लड़की के? मैं लड़की का जीजा हूँ। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। अच्छा, बताइए कि आपको क्या मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ? जी देखिए, मेरी साली को मैं सोमवार को अच्छा, सोमवार को मेरी साली से मेरी बात हुई, तो बोल रही थी कि जब से इनका पहले तो इनका भाई भाई का अलग मैटर था, अलग हो गए थे। अभी जब से मिले तब से और परेशानी बढ़ गया मेरा, क्योंकि सुबह से उठ के मेरे को सब कुछ करना पड़ता है। मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है हमको, हम अकेला परेशान हो जाते हैं। हाँ, इतना परेशानी है कि हमको अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे रहने में, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर हम उसको बोले चलो ठीक है, होता है फैमिली में, हर फैमिली में होता है सब थोड़ा बहुत। तो एक दिन बोल रही थी भाई बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेरे पीछे लगती है। हाँ, और उसके बाद फिर उसका जो ननद है, ननद हर वक्त, ननद का 2 बेटा है, एक का नाम है
आफरीदी और एक नाम है समीर, ये दोनों यहीं पे रहता है। इनका खाना पीना रहना उठना बैठना सब यहीं पे होता है। इनका कपड़ा भी यही धोती है, क्यों धोएगी वो, क्यों धोएगी उसका कपड़ा, क्यों, वो तो उसके इसमें आती नहीं है, उसके अंदर में आती नहीं है, लेकिन तब भी उनका नानी के प्रेशर में वो करना पड़ता है। रोज उसको परेशान करता है, ये करता है वो करता है, क्यों ऐसा क्यों करेगा? उनका तो कोई हक नहीं बनता है ना, वो अपना लाइफ है, उनका अलग फैमिली है, वो आके इसमें परेशान करते हैं तो आदमी को परेशानी तो होगा। हर किसी का जिंदगी का अलग अलग मैटर है। ये लोग और परेशान करेगा, परेशान करते हैं तो लास्ट में एक दिन बोल रहे थे कि मेरे को अच्छा लगा, किसी ने देखना मेरे को ये मार देगा, लोग मार देगा हमको। अच्छा, वो ऐसा बोलती थी आप लोग को, तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया फिर? ऐसा कुछ समझ नहीं आया, चलो ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो हटाओ, क्या है इसमें, ऐसा बोलते। ওরা আমাকে একদিন মেরেই দেবে, আমাকে মেরেই দেবে, সত্যি আজকে মেরেই দিয়েছে। आप लोग मेटल में गए? हम लोग मैटर में गए तो देख रहे हैं पुलिस हम लोग को अंदर जब जाने नहीं दे रहा था, तो पीछे से जो हम लोग को कॉल किया है मैटर में, तो उस लोग हम लोग को बोला था, हम लोग को पीछे से लेके जा रहा, तो ऊपर में गए तो सामने गेट में ताला मारा हुआ था। पुलिस लोग बोल रहे हैं नहीं जाने देंगे यहाँ से। फिर बोला जो हम लोग को जो फोन किया है वो बोला चलो लेडीज जो लड़की का घर में जा रहे हैं, तो लड़की का घर में गए हैं असलम भाई लेके गया है। तो घर में जाके देख रहे उसका मम्मी बहुत रो रही है, हम लोग को बोल रही है हम लोग को इंसाफ चाहिए, उस लोग को फांसी दो। अच्छा,